Ladies and gentlemen, Mr. Hardik Pandya from the Indian cricket team is here to address the press conference. We'll take questions in Hindi first. Questions in English. Hindi? Hindi, English. Hindi. English. Yeah. Okay. Yes. Represented. I just, I guess your own performance today. How did you feel as far as being able to contribute in so many areas today? And also, what was it like watching Rishabh's innings? How he paced that innings, I guess. It's always special to contribute in all the departments. I think that has given me a lot of confidence in the past, and when I'm able to do that, it just adds more layer to my game and to my confidence. And Rishabh, obviously, he pasted that inning was very important for us. That partnership as well, and obviously the way he finished. Well, we all know what kind of talent he has. It's just that when it comes out, it's just very pleasing to the eye and kind of gives a lot of people some. Your heartbeat also goes up, but at the same point of time, it gives you eyeballs as well, where you are in awe of the kind of shots he plays. Well bowled today, your career best ODI figures, I think. Jasprit was injured today. Obviously, that must have been a big blow when you found out he wasn't playing. You seem to enjoy the extra responsibility today. We knew, I knew Jassi was not going to play this game, but obviously, yes, when someone like him, he was telling me as well that you might have to go a couple of overs in the death. I said they are very big shoes to fill. I said, so I had to step up. If not in the death, I had to step up in making sure that the middle overs I kind of come and get us the breakthroughs. And I enjoy whenever things happens for me. The way I planned, it gives, as I said, it gives me confidence and adds more and more to my game. And from there, I knew batting wouldn't be a problem because the way my bowling went. IPL final was a major game for you when you came back after injury, and this is also another game. Do you think that this one is the icing on the cake? Sir, IPL, every game was important for me. Every game was, obviously, final gets highlighted more and series decided gets highlighted more. But for me, all the contribution I did in all the games were important. And yesterday only, I don't know, somehow I was just having a chat and, I just felt that I had that feeling saying this is a big game if you can contribute here for the team. I was talking to myself, if I can contribute towards, for my team, would be very nice way to finish the English tour. And, God has been very kind and, the way it happened. That's it. Yes. Jasprit, Hardik, what does this win mean to you? Obviously, Manchester 2019 means you were part of that World Cup squad, but then things did not go well for the Indian team. What does this mean to this entire group of boys to be winning a series in England and after that shocking loss and to be contributing throughout this to England trip? You have been passing through a golden run ever since you came back from that injury. IPL leading Gujarat Titans to IPL Championship, now winning a series, T20 series and ODI series. How do you sum up this entire journey? Very grateful, very humble. Something which I learned over the years that the better you get, the more humble you should become. And I think that has been something which I'm genuinely very proud of myself because I'm able to handle, a lot of people get success, but, kind of to digest success is the more important thing. So for me and, from my family, that has been very important. And that's the reason they've kept, throughout my journey, they have kept me grounded. And for the team, this win means a lot because, see, past is past. Manchester semi-final, it's past. You can't change anything. And in cricket, there is no revenge or there is nothing. It does not matter, to be honest. For us, it was important that how we go forward from here. A team like England, who has been fantastic throughout last couple of years, you see, and the kind of approach they have. Everyone found England one of the best teams in the world. To come here and perform and win is more important because that challenges you as a player, that challenges you as a team and as a group. So for me, and I think the whole group is very proud of everyone who contributed or even not contributed. The ones who are sitting out, they also played a big role because to make sure we get everything is very important. So from substitute to the support staff, I think everyone should get equal credit.
Um, Firstly, with my bowling, post IPL, so I think it's there in the world now that after every series I take maybe 4-5 days to train, because that is my refilling for my fitness and just to get fresh. I do, as I've said, I like to play 100% because then it gives me the opportunity to do all the things which I did today. So what you were saying? Sorry, I forgot. About your bowling. Yeah, about my bowling. Bowling, what I worked, after the break I took from IPL. When again I came back to play the South African series, I bowled 1 over. I did not bowl in a couple of games. So as a bowler, for me, it's very important to keep bowling. So I was not finding the rhythm. So even in Ireland when I played, I was not getting the rhythm which I wanted, because for me, I find myself a control bowler. I don't have much skills to, get the batter out and opening him up and, nipping the ball inside and all that. I play with smartness. I try to, outsmart the batter. I try to think that one step ahead of the batter. So for me, it's very important to get my consistency. So something which I worked, I went back to the videos which I saw before, and, it was more about the feeling. So it was just before the first T20 game. Generally, I don't practice before the game, but I just went and kind of bowled a couple of overs with full run-up and full effort. That's where I got my rhythm, and when obviously the 4 I took in the T20s kind of changed everything, and gave me my consistency and my confidence to pitch wherever I want to. So that's where I come into the picture and be effective. Is speed one of the factors? Because you said you bent your back while speaking to. Yes, I think for me, see, I think I bowl smart. I only bend my back, or I only come out and bowl quick as possible when required. It just depends. If you see my couple of games back, I was bowling 130s, 132s, because it was not that I was not able to bowl. It was more about that situation, and that time I felt that would have been an ideal thing rather than coming and hitting the back, because they are used to pace. Today the grounds were big, sides were big. I wanted to focus and want them to hit, take on the short, deep square leg player and the fine leg guy. So yeah, that's the reason I kept banging hard, and yeah, I was fancying my chances. Questions in Hindi now? Yes. हार्दिक विमल कुमार दिस साइड आप खुद अटैकिंग बैट्समैन अलग अलग स्ट्रोक्स खेलते हैं. अभी आपने ऋषभ पंत की तारीफ की, जब आप उनको देखते हैं तो अलग ही लगता है. जब आप पंत के साथ आज बैटिंग कर रहे थे, बड़ी होपलेस सिचुएशन थी, क्या आप उनको गाइड कर रहे थे? क्योंकि आप डिफरेंट स्टाइल में आईपीएल में अपने गेम को बदला है, क्या वैसी कुछ सलाह दे रहे थे? क्या बात हुई आप लोगों की? सिर्फ बात तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं उसको रिपीट कर रहा था. मैंने बहुत बार उसको रिपीट भी किया, और मैंने बोला भी से आई थिंक आई माइट बी थोड़ा, तो शायद मैं बहुत सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ. बट उस टाइम पे मुझे टीम की ज़रूरत थी कि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी. जो टैलेंट उसके पास है और जो टैलेंट शायद मेरे पास है, विदाउट रिस्क भी हम उतने ही रन बना सकते हैं. और रन कितने करने हो उसका पॉइंट था नहीं. इट वॉज अबाउट कि हम विकेट ना गवाए, और एक ही तरीके से इंग्लैंड टीम वापस आ सकती थी वो अगर हम बैक टू बैक विकेट्स लूज करें, बिकॉज ऑलरेडी हमने 4. सो अगेन एंड अगेन मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि पार्टनरशिप यहाँ से करेंगे, जितना क्लोज मैच ला सकते हैं, खत्म करो मैच. फिर अगर मैंने ऋषभ को बोला अगर फिर तुझे एंजॉय करना तो कर ले, लेकिन पहले मैच को क्लोज कर. और अब एग्जैक्टली उसने वो चीज किया, क्योंकि इनिशियली जब गया वो थोड़ा स्टक हो गया था, लेकिन जो पार्टनरशिप हम लोग का हुआ, जो फ्लो में पार्टनरशिप हुआ, उससे कॉन्फिडेंस दोनों बैट्समैन को आया. और फिर जब वो खुला, ऑब्वियसली सबको पता है जब ऋषभ मारना चालू करता, जब लगते हैं, तब आप बैठ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो आप खेल लो. अगर रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली तीनों की बात करें, पिछले 12-13 साल में इंडियन क्रिकेट के टॉप बैटर्स हैं, ओडीआई क्रिकेट में नो डाउट है. वो टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, इतना बड़ा चेज है, स्टार्ट अच्छा नहीं है, उसके बाद आप और ऋषभ लेकर जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है? क्योंकि जो सबसे आपका वो तो एक्सपीरियंस सबसे पॉजिटिव चीज है, उसके बाद भी इस सिचुएशन से, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी इस बात को किया था, रोहित ने भी कहा था कि जिम्मेदारी उठाएं यंगस्टर. उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े विजन को लेकर कैसे देखते हैं इस पार्टनरशिप? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको भी एक रिलीफ मिलता है दैट द मिडल ऑर्डर, अभी जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया गया है हम लोग को, उससे बहुत फर्क पड़ता है. बिकॉज पहले हमेशा ऐसा था कि टॉप 3 रन बनाते थे, और बिकॉज बैटिंग भी अपॉर्चुनिटी इतना नहीं मिलता था, और जो बड़े बड़े मैचेस में आते थे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था. सो अब एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि मिडल ऑर्डर है स्टार्टेड टू फायर. जब आप देखे जो ऑप्शन में जहां जहां प्लेयर आ रहे हैं, वहां दे आर स्टेपिंग अप एंड मेकिंग श्योर कि यार आई एम गोना सीमेंट माय प्लेस हियर. सो
उस दायरे से आप देखें तो बहुत बड़ी बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर मिडल ऑर्डर चला और जो टॉप ऑर्डर हमारा है जिस दिन सब चले तब तो वाही होगी। आखिरी सवाल एक हाँ। हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है, बैट से हो या बॉल से हो, वो चाहते हैं कि हर मैच में हर फॉर्मेट खेले, लेकिन टीम मैनेजमेंट बोलते नहीं, बहुत संभाल के रखना, क्वार्टर मोड में रखना, हमारे बड़े टूर्नामेंट है। आपके लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? ऐसा होता है कि नहीं मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन लॉन्गर इंटरेस्ट में टीम बोलती है नहीं, यू आर टू प्रेशियस अ प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट, नहीं संभाल के चलना है, पिक एंड चूज करना है? सर मैं प्रोफेशनल पे जाता हूँ, जो प्रोफेशनल्स मुझे बोलते हैं, जो मेरे फिजियोज और ट्रेनर्स और मैनेजमेंट बोलते हैं, मैं उसको करता हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता, जहाँ दौड़ाना होता है वहीं दौड़ाता हूँ, और वो एक गेम खेलते टाइम जब खेलना नहीं खेलना है उनके ऊपर है। दो सवाल है, एक बॉलर पंड्या के लिए, एक बैट्समैन पंड्या के लिए। बॉलर सवाल के ये है कि फास्ट बॉलर के लिए तंदुरुस्ती होना, फिटनेस होना कितना जरूरी है, क्योंकि यही आपका ऑपरेशन हुआ था इंग्लैंड में, आपके करियर को धक्का लगा था, आगे क्या होगा पता नहीं था, उसके बाद रिकवरी करके क्या अब आप समझ रहे हो कि ये शरीर भी एक मंदिर है? मंदिर तो सर मैंने जब से सर्जरी के पहले भी मंदिर ही था, लेकिन समय लगता है चीजों से, और ऑब्वियसली कोविड भी आया था तो बहुत फर्क पड़ा था। बबल आई थिंक मेरे को सूट नहीं किया था, क्योंकि जब क्राउड आते हैं तब थोड़ा ज्यादा मजा आता है। सो ऑन अ लॉन्गर रन आप पता नहीं कितना बबल में रहे हैं, लेकिन जब अगर बबल में रहना है, सेम चीज आप तीन महीने के देखते हो और फिर वो सिचुएशन पे आके वो प्रेशर में खेलना, वो बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि मैं तो रह चुका हूं तो मुझे पता है। मैं पिछले इफ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ल्ड कप के पहले तक आई थिंक मैं 17-18 महीने में से 14 महीने में बबल में था। सो मेरे बच्चे ने तो नॉर्मल दुनिया देखी नहीं, इसलिए अब वो मेरे साथ ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आई वांट हिम टू, उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे बच्चे के साथ भी खेले। पता चला बड़े उसको लगेगा अच्छा यही दुनिया है। सो बबल एंड एवरीथिंग जो एज अ प्लेयर सबके पार्ट किया, उसके लिए इम्पोर्टेंट था। और अब ठीक है, अब बबल नहीं है तो हम एंजॉय कर रहे हैं। बैट्समैन सवाल ये है कि एक्सीलेटर पे पैर रखना जरूरी है। आजकल इंटेंट की बात की जाती है हर क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, लेकिन एक्सीलेटर पे खड़ा होने की जरूरत नहीं होती। क्या ये अब समझ में आ रहा है सब? मतलब सर यानी कि रखना जरूरी है, उसके ऊपर खड़े होने की जरूरत है। मतलब हर बॉल लप्पा नहीं गुड़ाना। हाँ। अच्छा सर वो सर सिचुएशन की बात है। मैं तो सर हमेशा, मैं तो आई डोंट नो कितनी बार मैं बोला हूँ, मैं एक ही चीज रिपीट करता हूँ सर, मैं तो सिचुएशन खेलता हूँ। जहां लगा के अगर समय है यहाँ पे थोड़े रिस्क वाले शॉट खेलना है, मैं रिस्क वाले शॉट लूंगा, क्योंकि मैं कभी अपना टोटल या अपना स्कोर को कभी देखा ही नहीं हूँ। सो मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल बैटर इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस के कब रखना है कब नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाले ने दोनों दिए। सो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जनरली आज की मैच के इंपॉर्टेंट था कि एक इंटेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग ने एज अ ग्रुप भी स्पोक अबाउट इट के 300 साढ़े 300 तो इंडिया बहुत बार चेज कर चुकी है, और सबको पता है अच्छा क्या करना है, 6.5 रन पर ओवर है, एक मोमेंटम के साथ खेलना पड़ता है आपको। लेकिन जब सबसे बड़ी बात आती है जब 240 वाला, उसमें क्या करना है। सो जब लॉर्ड्स की मैच के बाद एक हम लोग का बात सबका हुआ, और सबने एक चीज बोला कि एक बार इंटेंट रखेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे, इंटेंट का मतलब वो नहीं है, डिफेंस भी एक अच्छा पॉजिटिव सा वो इंटेंट होता है। सो अगर वो इंटेंट आपके पास रहेगा तो जब आपको खराब बॉल मिलेगा तो आप एटलीस्ट उसको चौका सेफली मार पाएंगे। और सो मेरा बैटिंग में आज सिंपल मैंने वही रखा, इसलिए इनिशियली जाके मैंने रिस्क विदाउट चौके मारे, क्योंकि मेरा इंटेंट था कि मैं चौका मारूंगा, अगर अच्छा बॉल है उसको इज्जत दूंगा, नहीं है उसको मैं गैप में रखने की कोशिश करूंगा। और अगर जिस तरीके से विकेट था और जिस तरीके से बैट पे बॉल आ रहा था, ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट था। मोर देन एनीथिंग जितने ज्यादा बॉल खेल सके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हार्दिक, मुझे ये पूछना था कि जब आप बल्लेबाजी करने आए तब स्कोर था 72 रन, 2 for 4, तो उस हिसाब से आप जब आए बल्लेबाजी करने और आपका था लक्ष्य 260 का है, तो उस हिसाब से आपको क्या उस वक्त क्या था कि कैसे पार्टनरशिप वहां से बिल्डअप करना है और लास्ट तक ले जाना है, जितना स्कोर को क्लोज ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्रेशर सिचुएशन था। 72 for 4 से 260 करना आसान नहीं होता। सिर्फ दिमाग में तो वही था कि आप कैसे एटलीस्ट चौका नहीं तो एटलीस्ट एक रन स्टक नहीं होना था। मेरा प्लान एक ही था कि ये पार्टनरशिप में और ऑब्वियसली मुझे ऋषभ का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे पता था कि अगर वो टिकेगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो कवर कर लेगा। लेकिन मेरा खुद का पॉइंट मुझे वो था कि एटलीस्ट वन ऑफ द बैटर हैड टू कीप गोइंग इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग दोनों साइड से, एटलीस्ट रोटेशन होते रहे, बीच बीच में एक चौका आते रहे, तो बॉलर भी थोड़ा बैकफुट पे रहता। और मैंने जितनी बार भी देखा है 240 या इतने मतलब जो ट्रिकी स्कोर्स होते हैं ना, वहां अगर आप
रन रेट को बहुत ऊपर लेने जाते हैं और जिस तरीके से 4 विकेट ऑलरेडी ना, तो फिर उसके बाद काउंटर अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत हाई रिस्क शॉट से खेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अगर मोमेंटम रखेंगे, सेफ क्रिकेट खेलेंगे, गैप में मारते रहेंगे, एक एक लेते रहेंगे, और अगर बॉल मिला तो आप चौका, तो आपका रन रेट ऊपर नहीं आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको 10 में 50 चाहिए और 40, तो आपको बड़े शॉट नहीं मारने आप, तो भी आप सिंगल से ले सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी विकेट गया। सो वो इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली 50 रन बाकी था तब आउट नहीं होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। लेकिन जो सिचुएशन में आ गए थे, उस सिचुएशन में फैंसी कर रहे थे कि यहाँ से चीज कर लेंगे। आउटस्कोर करने का कंपटीशन चला, बल्कि आप उनके बाद में आए, लेकिन स्ट्रेट अवे आप रेस करके उनसे आगे आप आए, फिर वो आपसे आगे। उसका ट्रॉफी नहीं है, वरना हम करते, लेकिन उसका कुछ प्राइज नहीं मिलता। सो मैं तो नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था कितने रन बना सकते हैं। एंड ट्रॉफी सेलिब्रेशन हमने देखा खूब आप लोग एंजॉय किया, शैंपेन हाउस, जस्ट टेल अस अबाउट द सेलिब्रेशन। कहीं नहीं, मैं तो पीछे भाग गया था। मैं सर कौन अभी शैंपेन वाला डांस नहीं हो पाएगा, मतलब उसका शावर नहीं ले पाते, तो इसलिए मैं दूर चला गया। और पता नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को एक भी बार नहीं डाला, जो सबने एक दूसरे को डाल दिया, मैं बच गया। Thank you.